Assalamu alaikum students. One more question on trigonometry from your book D2 exercise 11D question number 13 एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी जो है वो थोड़ा सा ट्रिक लग रही है। और मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन भी जो है वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर किया जाए। इस क्वेश्चन को भी ज़रूर ट्राई करना, और अगर नहीं समझ में आया तो ये वीडियो की हेल्प ज़रूर लेना। इंशाल्लाह ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। So let's just begin with the question. Question number 13. We have 2 points P and Q. This is point P, this is point Q. They both are 10 meters apart and they are on a level ground and they are on the west of a foot B of a tree. ये एक ट्री है, ठीक है। TB is basically a tree. और इस ट्री की वेस्ट डायरेक्शन में we have 2 points P and Q that are 10 meter apart on a level ground. In order to understand the directions, हमें पता है कि NEWS न्यूज़ होता है। नॉर्थ इज अपवर्ड, साउथ इज डाउनवर्ड, east is on the right and west is on the left. So NEWS news. So 2 points are on the west of a tree. Two angles have been provided to us. Angle TPB. This angle is 23 degrees and angle TQB is 32 degrees. Or we have to find the height of the tree. We have to find this height. So since we have to find height, so I am labeling this as H. We have to find the height of this tree, and we are provided with the two angles, and one angle is 23, the other angle is 32, and we did not know the complete base. We only know some part of the base, that is 10. So I am just writing the other part as x. So this is x. From Q to B, this is x meters, and from P to Q, this is 10 meters. So the total distance from P, we have to find the height of the tree, that is h, and we are provided with the two angles. The first one is 23 and the second one is 32 degrees. We know the part of a base, that is PQ, which is 10 meters. I am labeling the other part of the base as x meters. P से Q तक 10 meters हो गई, and Q to B it is x meters, and the total distance from P to B is 10 plus x. ये 10 plus x हो जाएगा। I will be needing this base 10 plus x, इसीलिए मैंने इस x से लेबल किया है, because I don't know any other side instead of this 10 plus x. And I know that this is a right angle triangle. दो right angle triangles मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं. The first one is this small one, which is TQB. This is a right angle triangle, and the other one is the bigger one, that is TPB. ये बड़ा वाला भी तो right angle triangle है। तो since I have two right angle triangles, so I can use two trigonometric ratios. दो बार मैं trigonometric ratios use करूंगा, and I will try to make some equations. Since ये advanced level question है तो इसमें थोड़ी सी trick तो होगी लाजमी, इतना straight forward तो ये होगा नहीं। तो मैंने क्या किया अभी तक, I have to find the height of the tree, तो मैंने height of the tree को h लिख दिया question mark। और फिर मैंने ये काम किया कि since I will be needing this base, so I am just labeling this Q B पार्ट, ये जो Q से B तक का पार्ट है इसको मैंने x मीटर्स लिख दिया है। तो द टोटल विल ऑटोमेटिकली बी 10 प्लस एक्स। ये टोटल फ्रॉम P टू B जो है वो 10 प्लस एक्स हो जाएगा। नाउ फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस स्मॉलर ट्राइंगल, जो TQB है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले मैं इस पे जो है वो आई एम अप्लाइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 32 डिग्रीज मुझे गिवन है, 32 के सामने वाली साइड ऑपोजिट हो जाएगी, और जो ये वाली साइड है दैट विल बी एडजेसेंट। तो सिंस आई डो नॉट नो एनीथिंग एच और एक्स की फॉर्म में, तो इसको एच और एक्स की फॉर्म में ही रहने देंगे। तो आई नो दैट 1032 विल बी इक्वल्स टू 1032 इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो आई विल जस्ट स्टार्ट ऑफ विद राइटिंग 1032, एंड 1032 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट। ऑपोजिट में मैं h लिखूंगा क्योंकि मुझे TB जो है मैंने h से रिप्रेजेंट किया है, एंड डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट। एडजेसेंट इज QB, और QB जो है वो x है। तो आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम हेयर। ये x यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास जो h की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 1032। और ये मैंने जो है वो अपनी पहली इक्वेशन बना ली है। ये इक्वेशन मुझे आगे काम आएगी जब मैं दूसरा ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूंगा। तो मे बी पॉसिबल मुझे ये वाली जो है वो h की वैल्यू यूज करनी पड़े। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। तो h इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 1032। सो नाउ कंसिडरिंग द बिगर राइट एंगल ट्राइंगल, जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज PTB। PTB में भी मुझे एक एंगल पता है 23। तो मैं जो है इसको यूज करता हूँ। अगेन आई विल यूज द सेम, ऑपोजिट साइड h है, और मेरे पास जो एडजेसेंट है वो एडजेसेंट पूरी P प्लस B है, सॉरी एडजेसेंट पूरी PB है जो कि 10 प्लस x है। तो मैं इसको अगेन यूज करने वाला हूँ।
तो नाउ आई विल यूज 23, 10, 23 विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और ऑपोजिट साइड इज द सेम, दैट इज एच, यहाँ भी ऑपोजिट साइड एच है, तो आई विल जस्ट यूज एच, और दिस टाइम द एडजेसेंट साइड इज नॉट एक्स, एडजेसेंट साइड मेरे पास जो है वो पूरी बेस है जो कि पी से लेके बी तक है, सो दैट इज 10 प्लस एक्स, इसीलिए मैंने जो है वो इसको एक्स से लेबल किया था। अगेन आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एच की मैं एक और इक्वेशन बना लूंगा, तो एच की जो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 1023, और 1023 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 प्लस एक्स। तो आई हैव द टू वैल्यूज ऑफ एच नाउ, मेरे पास दो एच की वैल्यूज हैं, मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, और अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज करूंगा क्योंकि बोथ आर द वैल्यूज ऑफ एच, दोनों एच की वैल्यूज हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों बराबर होंगी क्योंकि ये सेम ही वेरिएबल की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है एच और एच, तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड भी बिल्कुल बराबर होगी। सो दीज आर द टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर वन मैंने बना ली एच की फॉर्म में, इक्वेशन नंबर टू मैंने एच की फॉर्म में बना ली। तो अब सिंस बोथ द इक्वेशंस आर जो है वो एच की इक्वेशंस है, मतलब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे एच है, यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है इक्वेशन की, तो इसका मतलब है कि दोनों की राइट हैंड साइड पे भी जो वैल्यू लिखी है वो भी बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होगी। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं क्या करूंगा कि दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दूंगा, इक्वल्स टू कर दूंगा। इक्वेट का मतलब होता है कि पहले मैं इक्वेशन नंबर वन की राइट हैंड साइड लिखूंगा जो कि 32 मल्टीप्लाई बाय एक्स है, और फिर मैं उसको इक्वेट करूंगा मतलब इक्वल्स टू करूंगा, और फिर मैं इक्वेशन टू की जो राइट हैंड साइड है जो कि 1023 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस एक्स है, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। इसको कहते हैं इक्वेशन को इक्वेट करना। इक्वेट मैंने क्यों किया है, क्योंकि जब इक्वेशन दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हो, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड पे एच है और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड पे एच है, ठीक है, तो जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है, यहाँ भी एच है यहाँ भी एच है, तो इसका मतलब है कि दोनों की राइट हैंड साइड भी बिल्कुल बराबर होगी। या इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर वन से जो एच की वैल्यू आ रही है वो मैंने इक्वेशन नंबर टू में एच की जगह पे प्लेस कर दी, इसको इस तरह भी समझा जा सकता है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस 1023 को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो एक्स एज इट इज रहेगा, और जो है मैं इस तरह ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, और ऊपर जो है वो मैं 1032 लिख लूंगा, 1032, और 1032, और चूंकि ये 1023 वहां से यहाँ आया तो ये इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और इस पे इन्वर्स नहीं आएगा क्योंकि इन्वर्स उस वक्त आता है जब मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मूव करता हूँ, एंगल को मूव नहीं करता, तब इन्वर्स आता है। अभी यहाँ इन्वर्स नहीं आएगा क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस एंगल दोनों को मूव किया है, तो ये 1023 हो जाएगा, और दूसरी साइड पे मेरे पास जो है वो सिर्फ 10 प्लस एक्स बच जाएगा। तो नाउ आई विल यूज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को यूज करता हूँ जल्दी से, और 1032 डिवाइडेड बाई 1023 करता हूँ। 1032, पहले मैंने 10 प्लस किया, 32 ब्रैकेट क्लोज किया, डिवाइड का साइन लगाया, उसके बाद दोबारा 10 प्रेस किया, और देन ब्रैकेट ओपन हो गया 23। तो जब मैं दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.47। तो इस तरह समझ लो कि ये हो गया 1.47, और x तो मल्टीप्लाई हो ही रहा था इसके साथ, तो 1.47 x आ गया इस साइड पे, और उस साइड पे मेरे पास जो है वो 10 प्लस एक्स आ गया। और अब मैं लाइक वेरिएबल्स को एक साइड पे कर देता हूँ, तो ये प्लस एक्स जो है जब इस साइड पे आएगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और आपको पता है कि 1.47 में से जब मैं x को माइनस करूंगा, x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि 1x है ये। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको 1x लिख दो, ये प्लस का x जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और इसके साथ 1 लिख दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, x लिखो या 1x लिखो एक ही बात है, इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। 0.47 में से x को माइनस करूंगा तो आई विल गेट 0.47x, और सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए तो मैं h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो आई विल जस्ट शिफ्ट दिस 0.47 ऑन द अदर साइड, तो x की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 0.47। तो 10 को जब मैं 0.47 से डिवाइड करूंगा, अगेन आई विल टेक द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, और 10 को 47.47 से डिवाइड करते हैं जल्दी से, 21.2 ले लेते हैं, तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई दैट इज कमिंग आउट एज 21.2, और ये मीटर्स में आ रही है। और अगेन मुझे एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी थी, मुझे हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करनी थी, तो आई कैन यूज दिस वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर वन में जो मैंने यहाँ फाइंड आउट की है, और मैं जो है वो एच की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एच की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, एक्स की जगह पे मैं 21.2 रखता हूँ, और मैं 21.2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1032 से, तो मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड एच की वैल्यू आ जाएगी 1032। अगेन कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी,
1032 पहले कैलकुलेटर से निकालते हैं। 10 प्रेस करना पड़ेगा पहले। 1032 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू जो भी आंसर आएगा उसको 21.2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास जो हाइट आ जाएगी दैट इज 13.247, या इसको 13.25 भी लिख सकते हैं। तो द हाइट ऑफ द ट्री इज कमिंग आउट एज 13.25 लिख देते हैं इसको, 13.25 मीटर। तो ये एडवांस लेवल क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें नहीं आई हैं जो कि इंशाल्लाह आपको आगे ग्रेड 10 या ग्रेड 11 में जब आप जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह वहाँ यूज़ होगा। किस तरह मैंने जो है वो दो इक्वेशंस बनाई और फिर दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया उनकी राइट हैंड साइड को। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, एक नया कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने जो है वो इसकी वीडियो बनाई है, ताकि ये कि तुम इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आए तो यू कैन सी इट अगेन एंड अगेन, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।